मैं डॉक्टर जोरा सिंह, चांसलर देशभक्त यूनिवर्सिटी, देशभक्त यूनाइटेड, देशभक्त यूनिवर्सिटी अमेरिकास। ये देशभक्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो कि 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2012 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡ ਸੇਂਟ ਵਿੰਸੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਨਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ MBBS ਦਾ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨੈਬ ਦੀ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਿਗੋਰਸ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਰਿਗੋਰਸ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਂਟ ਵਿੰਸੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਨਾਈਡਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਬ ਦੀ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 3.11 ਆਊਟ ਆਫ 4 ਜੋ ਕਿ NAAC A+ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਵਰਟਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸક્ષਮ ਕਰ ਸਕੇ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ MBBS ਕਰਕੇ SVG ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਦੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਏ ਵਰਲਡ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਏਲਮੈਂਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ 3.11 ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ SVG ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ NAAC ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ NAD ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3.11 ਰੈਂਕ ਆਊਟ ਆਫ 4 which is very high class rank amongst the top 5% universities. So ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ it is not comparable with anyone. We are the only one. ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ MBBS ਜਿਹੜੀ ਕਿ MD ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ MD ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ MBA, BBA ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੁਮਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ। क्या रिसर्च वास्ते उनसे जाओगे बच्चे? DBU is known for academic and research portfolios. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ NAB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਕਸਲੈਂਸ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਲੈਬਸ, ਕਲਾਸਰੂਮਸ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਟੀਕਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ NAB ਦਾ ਇਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰमोशन वास्ते NAB एक बहुत ही स्तंभ है उसका। सर, इसमें एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस रहेगा और क्या ये ऑफलाइन रहेगी या ऑनलाइन है? ये स्टडी जो है ये ऑफलाइन स्टडी है। एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन हो सकता है, सोशल मीडिया पर इसकी हम समय समय पर रिलीज करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज करते रहते हैं एंड जो डिजायरस स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप ही उसको क्लिक करते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली दे रीच अवर एडमिशन ऑफिस एंड टेक एडमिशंस एंड देन एवरी फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स बाय अवर ऑफिस ऑफ DBUA in MR office in Mohali, and they are taken to the institute there to study there further. तो बाहर जाने के लिए सारा प्रोसेस फिर आपकी तरफ से ही होता है? Yeah, then all those processes are done by us. Of course, with the पीआर के लिए सब होते रहेंगे कोर्सेज? हाँ जी, फ्यूचर जो PR तो मिलेगी जब उसमें ये डॉक्टरी का कोर्स करने के बाद, MD कंप्लीट करने के बाद बच्चे अपना USMLE का, आपने सुना होगा, USMLE का एग्जाम में बैठ सकते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन बोला जाता है। तो वो एग्जामिनेशन करने के बाद स्टूडेंट दे कैन सेटल इन कनाडा, इन अमेरिका और एनी नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज और यूरोप इवन।
तो उसके लिए इट्स वेरी वेरी यूजफुल फॉर द बेटर। मेरा नाम डॉक्टर तेजिंदर कौर, आई एम द प्रो चांसलर देश भगत यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब बोल रहे सी कि USMLE ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ USMLE ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ USMLE ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, so that by the time ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ USMLE नहीं कराई जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर हर्ष सदावर्ती, वाइस चांसलर देश भगत यूनिवर्सिटी। तो ये जो DBU अमेरिकास का प्रोग्राम है, इसमें MD जो हम बोलते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, इंडिया में उसको MBBS बोला जाता है। ये 5 साल का कोर्स है और उसके लिए जो 10+2 मेडिकल स्टूडेंट है और नीट क्वालिफाई करता है यहाँ पर, और 60% उसकी एलिजिबिलिटी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 22 लाख लोग नीट में बैठे और सिर्फ 1.25 लाख सीट है, तो बाहर जाने का बहुत ज्यादा स्टूडेंट को एक मेडिकल डॉक्टर बनने का बहुत ज्यादा इच्छा है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देशभक्त यूनिवर्सिटी लेके आई है उनके लिए। दूसरा 4 साल का कोर्स भी है ये। हम देखते हैं यहाँ पे इंडिया में कोई लोग +2 के बाद वो MBBS नहीं ज्वाइन कर पाया तो वो हेल्थ साइंसेस के कोर्सेज ज्वाइन कर लेता है, कोई डेंटल, नर्सिंग, आयुर्वेदा, फार्मास्यूटिकल, पैरामेडिकल कोर्सेज या BSc और तरह के मेडिकल प्रोग्राम बहुत तरह के, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी। फुल स्टूडेंट के लिए हम जैसे इंडिया में लेटरल एंट्री बोलते हैं कि 1 साल बचता है, तो फास्ट ट्रैक 4 इयर्स की MD प्रोग्राम है उनके लिए, MBBS प्रोग्राम। तो ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है जो मेडिकल डॉक्टर बनने का सपना तो देखा लेकिन पूरा नहीं हो सका। वो सपना पूरा करने के लिए भी देशभक्त यूनिवर्सिटी उनके लिए आई है, ताकि आम के तरीके 3 साल वहां बच्चा पढ़ेगा कैंपस के अंदर, 2 साल की क्लिनिकल रोटेशन किसी भी कंट्री में वो कर सकता है। और हमने ये देखा है कि स्टूडेंट का इच्छा कहीं ना कहीं रहता है कि बाहर पढ़ने जाऊं और आगे मैं USA, UK, कनाडा कहीं ना कहीं पाथवे बना के चला जाऊं, और वहां के जो भी वहां के कंपटीशन के एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, USMLE जैसे एग्जाम है, उसकी तैयारी साथ साथ कराई जा रही है बच्चों को, ताकि 3 साल के बाद वो क्लियर कर सके और आगे मूव कर पाए। उसके अलावा MLA2 एग्जाम भी होता है, 3 भी होता है। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आए कि क्लिनिकल रोटेशन तो होगी रिनाउंड हॉस्पिटल्स के अंदर, साथ साथ रेजिडेंसी प्रोग्राम भी बच्चा कर सकता है। जैसे इंडिया में MBBS के बाद बोलते हैं MD किया, MS किया, वैसे कोर्सेज भी कर सकता है और उसके बाद वो हिंदुस्तान में वापस भी आ सकता है स्टूडेंट। और कोई बच्चा वहां पर 5 साल पढ़ने के बाद भी इंडिया वापस आना चाहता है, तो आपको पता है कि नेक्स्ट का एग्जाम नेशनल एग्जिट एग्जाम है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए लागू हो रहा है जो यहाँ भी MBBS कर रहे हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, और देशभक्त यूनिवर्सिटी मानी ही इसके लिए जाती है एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये हम अपना विजन लेके चल रहे हैं ताकि स्टूडेंट को जो भी डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन ग्लोबली कॉम्पिटेंट डॉक्टर बने, हमारे स्टैंडर्ड के साथ जो क्वालिटी पैरामीटर पे जो फिट होता है स्टूडेंट, वो ही वहां जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है यूनिवर्सिटी ने, और 3.5 डेकेड से लेके आ रहे हैं हम लोग, 30-35 साल से अपना DBEST नाम का देशभक्त यूनिवर्सिटी का एक स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं हम लोग। तो यहाँ का भी हमने DBEST एग्जाम में रखा है नाम, जैसे कि हमारे वर्दी प्रेसिडेंट सर ने कहा, इसका नाम रखा है ग्लोबल MD 2026, कि आप ग्लोबल लेवल का डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कोर्स करो। और दिसंबर 13 तारीख को पहला एंट्रेंस हो रहा है इसका, इसके बाद इसका एंट्रेंस होगा मई के अंदर, फिर जुलाई में, फिर सितंबर में। तो 4 बार साल में होगा, ताकि स्टूडेंट जो नीट कर भी गए हैं अभी भी वो नहीं एडमिशन ले पाए, उनको सपोर्ट भी कर रही है ये यूनिवर्सिटी। इसका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना है? 5 साल का कोर्स है और 4 साल का उनके लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। उसके लिए स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। उसके अंदर जो मेरिट बनेगी स्टूडेंट की, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट होंगे, और जो हम लोग देखते हैं कि कई फादरलेस सिंगल गर्ल चाइल्ड, जो भी हम लोग इंडिया में स्कॉलरशिप देते हैं,
उनका वो वाला पैरामीटर तो लेके चलेंगे, साथ में मेरिट जरूर लेके चलेंगे, क्योंकि मेरिट के बिना स्टूडेंट वहां पर एक ग्लोबली कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं बन सकता, तो उनको फाइनेंशियली पूरी सपोर्ट मिलेगी। कितने स्टूडेंट्स को मिलेगा ये ये स्कॉलरशिप? हमने जो इनिशिएटिव लिया है ऑलमोस्ट 10% स्टूडेंट्स हम लेके चल रहे हैं कि जिनको डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन 10% हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स को और जो फाइनेंशियली पुअर है उनको देंगे।